Hello everyone, welcome to JKSSB Mock by Toppers. In this video, we'll be covering the important current affairs for 25th and 26th of July. Let's begin. Jammu and Kashmir recently launched its first ever tea plantation initiative in the hilly terrains of which of the following districts. हमें बताना है कि जम्मू कश्मीर ने रिसेंटली जो टी प्लांटेशन इनिशिएटिव लॉन्च किया है वो किस डिस्ट्रिक्ट में किया है. इज इट रामबन, डोडा, उधमपुर और कठवा? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कठवा. In the region of Bilawar, Kathwa, this has been done by the Agriculture Department. How many districts in the Union Territory of Jammu and Kashmir have been selected for the establishment of daycare cancer centers under National Health Mission? कितने districts को select किया गया है in Jammu and Kashmir? So the right answer for this is option C, 6. 6 districts include Jammu, Shopian, Samba, Ramban, Riyasi and Kishtwar. Which central ministry spearheaded the establishment of Center of Excellence on PESA in collaboration with Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak in 2025? So यहाँ पे थोड़ा हम समझते हैं पहले. PESA का मतलब होता है पंचायत extension to scheduled areas. This was actually an act passed in 1996. जो हमारे शेड्यूल एरियाज़ हैं इंडिया के, उनको टू मेक देम सेल्फ गवर्नेंस करने के लिए वहाँ पे, सो दैट देयर विल बी सेल्फ गवर्नेंस इन द ट्राइबल एरियाज़, इन द शेड्यूल एरियाज़. दिस एक्ट वॉज पास इन 1996. However, over the years it was found कि जो वहाँ पे लोग हैं they are not rightly informed about their rights. जो वहाँ के leaders हैं they don't have the actual information or they are not rightly informed about their powers. तो ये सब दूर करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा in collaboration with Indira Gandhi National Tribal University and Ministry of Rural Development and Panchayati Raj. This will be set up in Madhya Pradesh. Under which government program launched in 2003 did India achieve 20% ethanol blending in petrol by 2025, well before the originally scheduled target year? तो एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2003 में, हमें उसका नाम बताना है. इस प्रोग्राम के तहत 20% ethanol blending in petrol India has already achieved in 2025, जबकि हमारा टारगेट था कि हम 2030 ये अचीव करेंगे, लेकिन हमें 2025 में अचीव कर लिया है 20% एथनॉल ब्लेंडिंग. 2022 में हम 10% पे थे एंड 2025 में हम 20% जो हमारा टारगेट था फॉर 2030 वो अचीव कर लिया है. ये मिशन लॉन्च हुआ था 2003 में एंड द नेम ऑफ द मिशन इज़ ऑप्शन बी, एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, लॉन्च इन 2003. इससे हमारा जो इम्पोर्ट्स होता है क्रूड ऑयल्स का वो कम हो जाएगा, हमारी डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल्स पे कम हो जाएगी. पेट्रोल में हम ज़्यादा इथेनॉल करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे, जो हम यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, जो हमारे फार्मर्स डोमेस्टिकली ग्रो कर सकते हैं. मेनली इसके रिलेटेड जो क्रॉप होता है दैट इज़ शुगर केन. द पालना स्कीम aimed at providing daycare for children of working mothers operates under which larger government mission? So यहाँ पे I have simplified the questions. I have included first, this is पालना scheme. पालना means day care for children of working mothers. जो भी mothers working के लिए जाती है और उनको घर में children के टेक केयर करने के लिए कोई नहीं होता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये स्कीम लॉन्च की है known as पालना स्कीम. दिस इज़ one thing. The second thing is it comes under which larger government mission? There is an umbrella scheme जिसके अंदर सारी ऐसी स्कीम्स है जो एम्पावर करती है वुमेन को, वो आती है. वी हैव टू नेम दिस अम्ब्रेला स्कीम, दिस लार्जर गवर्नमेंट मिशन, जिसके अंदर ये पालना स्कीम ऑपरेट करती है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मिशन शक्ति. मिशन शक्ति क्या एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंदर जो ऐसी स्कीम्स है जिनसे वुमेन एम्पावर होती है वो सारी इसके अंडर ऑपरेट करती है. और यहाँ पे याद रखिए पालना स्कीम, अगर कोई वुमेन जो काम करती है, काम पे जाती है और उसको घर में कोई नहीं है फॉर taking care of her children, so they can be assisted with this help of पालना scheme. Also remember ज़रूरी नहीं है कि दिस पालना स्कीम
खाली उन मदर्स के लिए है जो काम करती है, इट इज़ ऑल्सो फॉर नॉन वर्किंग मदर्स. सो रिमेंबर दिस, रिमेंबर नेम ऑफ स्कीम, पालना स्कीम. In a landmark diplomatic decision, which country became the first G7 nation to officially recognize the state of Palestine in 2025? एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, and the first G7 nation that has recognized the state of Palestine is option C, France. France actually will do it in September, but they have already announced. Recently, DRDO successfully test-fired the drone-launched missile ULPGM V3. Where was the trial conducted? ULPGM V3 एक ड्रोन बेस्ड मिसाइल है. ड्रोन से ही आप इसको फायर कर सकते हैं. ड्रोन बेस्ड मिसाइल जो जॉइंटली डेवलप किया है अडानी एंटरप्राइजेज एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने अंडर द सुपरविजन ऑफ DRDO. Now we have to say, where was its trial conducted? Its trial was conducted in NOAR Kurnool, National Open Area Range in Kurnool. यहाँ पे इसके ट्रायल किया गया था. दिस मिसाइल ULPGM जो ड्रोन से लॉन्च हो सकता है, इसकी जो रेंज है दैट इज़ 4 किलोमीटर्स ड्यूरिंग डे टाइम एंड 2.5 किलोमीटर्स ड्यूरिंग नाइट टाइम. दिस इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस. It's also a forget and fire missile. Sorry, fire and forget missile. Means once you lock in the target, you just have to fire the missile, then it will automatically, using the sensors, will be able to hit the target. इसको हमें guide नहीं करना पड़ता है. And this is launched from drones. What is the primary objectives of NASA's Tracers mission launched in 2025? यहाँ मैंने ट्रेसर्स की फुल फॉर्म भी दी है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. टैंडम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनामिक्स रिकॉनेसेंस सैटेलाइट्स. सो बेसिकली ये जो ट्रेसर्स मिशन है नासा का, 2 सैटेलाइट्स लॉन्च किए इन्होंने. ये जो हमारे सन का मैग्नेटिक फील्ड है और जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी जो इंटरेक्शन है, ये इसको स्टडी करेगा. यहाँ पे ऑप्शन सी, टू ऑब्जर्व मैग्नेटिक रिकनेक्शन. रिकनेक्शन मीन्स यही जो यहाँ पे इंटरेक्शन होता है बिटवीन दीज टू मैग्नेटिक फील्ड्स एंड स्पेस वेदर इफेक्ट ऑन अर्थ एटमॉस्फेयर. तो जिसकी वजह से हमारे सैटेलाइट्स इफेक्ट हो सकते हैं, हमारा GPS इफेक्ट हो सकता है. तो इसी को स्टडी करने के लिए, टू स्टडी दिस मैग्नेटिक क्या कहते हैं इसको, मैग्नेटिक इफेक्ट्स इन एटमॉस्फेयर, दिस मिशन नासा ट्रेसर्स मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड. सो रिमेंबर, सन और अर्थ का जो इंटरेक्शन होता है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, उसको स्टडी करने के लिए नासा ट्रेसर्स मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन 2025. Which country has recently received a $565 million line of credit from India as a part of efforts to strengthen bilateral ties in 2020? As you know, Mr. Prime Minister Modi was also invited as a chief guest to this country, where they celebrated their Independence Day on 26th of July, 60th Independence Day. The name of the country is Maldives. Maldives को इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है of around $565 million. Now there is difference line of credit और लोन. एक सिंपल डिफरेंस याद रखिए, लोन एक वन टाइम अमाउंट होता है जो कोई भी कंट्री या कोई भी 2 एंटिटीज़ के बीच में होता है, एक टाइम पे दिया जाता है. लाइन ऑफ क्रेडिट आप कह सकते हैं कि एक लिमिट सेट की गई है कि $565 million आपको मिलेंगे, बट अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट्स. एक साथ नहीं देंगे, जब जब ज़रूरत होगी जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तब मालदीव्स को ये दिया जाएगा. सो दिस इज वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन लाइन ऑफ क्रेडिट एंड लोन. Which 2 countries are participating in the joint military exercise Bold Kurukshetra held in Jodhpur, राजस्थान? बोल्ड कुरुक्षेत्र एक ऐसी एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो इंडिया परफॉर्म करता है विद सिंगापुर. सो इंडिया एंड सिंगापुर पार्टिसिपेट इन द बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज. रिमेंबर दीज नेम्स ऑफ दीज एक्सरसाइज. मैं जो भी करंट अफेयर्स में आते हैं, मैं उनको यहाँ पे हमेशा अपने वीडियोज़ में इंक्लूड करता हूँ. सो जस्ट कीप ऑन रिमेंबरिंग दिस. Who has been appointed as the first woman vice chancellor of Indira Gandhi National Open University IGNOU in July 2025? Sorry, very important question. The right answer, as you can see in the image, Uma Kanjilal. Uma Kanjilal has been appointed as the first woman vice chancellor of IGNOU. In which event did Indian archers Parneet Kaur and Kushal Dalal
कौन से इवेंट में परनीत कौर और कुशल दलाल जी ने गोल्ड मेडल जीता है? सो दीज इंडियन आर्चर्स वन दिस गोल्ड मेडल इन कंपाउंड मिक्स्ड टीम। अब ये कंपाउंड मिक्स्ड टीम क्या होता है? कंपाउंड और रिकर्व, यहाँ पे दो चीज़ें दी गई है, कंपाउंड और रिकर्व, ये दोनों रिलेटेड है विद आर्चरी। कंपाउंड में जो होता है, जो बो होता है, इट्स टेक्निकली एडवांस्ड। टेक्निकली एडवांस्ड बो होता है फॉर मच मोर प्रिसिशन और एमिंग। और रिकर्व में कन्वेंशनल बो यूज किया जाता है। नाउ रिमेंबर अनदर थिंग, दिस कंपाउंड आर्चरी हैज ऑल्सो बीन इंक्लूडेड इन द 2028 LA Olympics. So Parneet Kaur and Kushal Dalal won this gold medal in compound mixed team, and this event was held currently in World University Games जो चल रही है in Germany, वहाँ पे ये इवेंट हेल्ड किया गया था and these two won the gold medal. Let's move forward. World Mangrove Day is observed every year on which date? Remember, World Mangrove Day is observed every year on July 26th. M से मैंग्रोव, M से मॉलडीव्स का इंडिपेंडेंस डे भी जुलाई 26 को होता है और वर्ल्ड मैंग्रोव डे भी जुलाई 26 को होता है। मैंग्रोव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कोस्टल एरियाज़ में। सुनामी के टाइम्स दे प्रिवेंट दीज कोस्टल सिटीज़ फ्रॉम बिग वेव्स ऑफ सुनामीज। ऑल्सो रिमेंबर, एक फैक्ट है कि अगर फॉर ए सेम हेक्टेयर ऑफ लैंड जहाँ पे कोई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो और उसी सेम हेक्टेयर में मैंग्रोव फॉरेस्ट हो, so this mangrove forest will absorb 5 times more carbon than these tropical forest for a particular hectare. इतने ज़रूरी है हमारे लिए मैंग्रोव्स। वर्ल्ड मैंग्रोव डे इज ऑब्जर्व ऑन जुलाई 26। यूनेस्को ने एक्चुअली इसको एस्टैब्लिश किया था इन 2015 से हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड मैंग्रोव डे। In the 2025 Henley Passport Index, what is the India's NIV ranking? So India's NIV ranking is 77th. Last time it was 85. Now India has jumped to 77th with points 59. मतलब 59 ऐसी कंट्रीज है जहाँ हमें वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। इसको टॉप किया है एज यूजुअल सिंगापुर ने। सेकेंड स्पॉट पे जापान एंड साउथ कोरिया। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।